آج ہی چند دن پہلے ہم نے ایک بڑا اہم تہوار منایا ہے جسے عید قیامت المسیح کہا جاتا ہے۔ اور پچھلے اتوار کو ہم نے ایک ایسے واقعے پر غور کیا جو اسی دن صبح سویرے رونما ہوا، جس طرح ابھی آج بھی یہ حوالہ لکھا گیا ہے یوحنا کی انجیل کا 20واں باب اور اس کی 19ویں اور 20ویں آیت۔ پچھلے اتوار کو جس آیت پر ہم نے غور کیا تھا وہ یہاں پر وہ تھی 10ویں اور یاد ہے جی، وہ 10ویں اور 11ویں آیت پر غور کیا تھا، اور یہ واقعہ جو ان آیات میں ہوا وہ اسی صبح کا ہے، جس طرح ہم نے پڑھا بھی تھا اسی یوحنا کی انجیل کے 20ویں باب کی پہلی آیت میں کہ جب یہ واقعہ رونما ہوا تو وہاں پر لکھا کہ ابھی اندھیرا ہی تھا، یعنی کہ صبح کا ٹائم، جب خداوند یسوع مسیح کی ملاقات مریم مگدلینی کے ساتھ ہوئی اور پھر اسے یہ اعزاز ملا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھنے کی پہلی گواہ بن گئی، اور اس کے پیچھے جو وجوہات تھی ہم نے ان کو سیکھنے کی کوشش کی کہ اگر اسے یہ اعزاز ملا تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ شاگرد پیچھے رہ گئے جن کو رسول ہونے کا ٹائٹل اور مرتبہ دیا گیا، وہ پیچھے رہ گئے، اور ایک عورت کو یہ اعزاز دے دیا گیا۔ ان وجوہات کو ہم نے پاک کلام کی روشنی میں سیکھنے کی کوشش کی تھی، اور آج بھی ایک اسی دن کا واقعہ ہے، لیکن یہ واقعہ جو 10ویں 11ویں آیت میں لکھا گیا یا اس سے پہلے وہ ہے صبح کا، اور یہ واقعہ جس پر آج ہم غور کرنے جا رہے ہیں جو 19ویں 20ویں آیت میں درج ہے وہ یہ واقعہ صبح کا ہے، اور یہ جو واقعہ ہے یہ شام کا ہے، لیکن دن وہی ہے۔ اور دن یہ کون سا ہے؟ یہ بھی بڑی قابل غور بات ہے۔ دن کون سا؟ یہ ہفتے کا پہلا دن ہے، اور یہ حوالہ ذرا نکالیں جن بچوں نے نکال لیا ہے، ذرا اس کو پڑھنا شروع کریں جی، کوئی بھی آپ میں سے جو پڑھنا چاہتا ہے۔ 2 آیات ہیں یوحنا کی انجیل کا 20واں باب اور اس کی 19ویں اور 20ویں آیت۔ کیا لکھا جی اس میں؟ پھر اسی دن جو ہفتے کا پہلا دن ہے، اسی دن سے مراد کیا ہے؟ ایسٹر کا دن۔ اسی دن سے مراد کیا ہے کہ جو پہلے واقعات لکھے گئے 19ویں آیت سے پہلے 20ویں باب میں جو واقعات پہلی 18 آیات میں ہم نے پڑھے، خدا کا بندہ انجیل نویس لوگوں کے سامنے اس بات کو رکھ رہا ہے کہ جو 19 آیات میں آپ نے واقعات پڑھے ہیں خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد کے جو مناظر آپ نے دیکھے ہیں کہ کس طرح سے عورتیں قبر پر گئی ہیں، کس طرح سے شاگرد بھی وہاں پر گئے ہیں، کس طرح سے ان کو وہاں پر سے پیغام ملا ہے کہ وہ یہاں پر نہیں ہے بلکہ اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا، زندہ کو مردوں میں سے اٹھا، تو یہ فرشتوں نے پیغام دیا۔ اور پھر ہمیں اس بات کا علم ہے کہ مقدسہ جو مریم مگدلینی ہے اس کو کس طور سے یہ مقرر کیا گیا کہ جا کر میرے بھائیوں کو یہ خبر دو۔ ہم نے یہ پہلی 19 آیات میں واقعات پر غور کیا ہے۔ پھر اسی شام جو ہفتے کا پہلا دن ہے، اور ہفتے کا پہلا دن کیلنڈر کے مطابق پتہ کون سا ہے؟ اتوار، ہفتے کا پہلا دن۔ اور آپ کو یہ پتا ہے کہ ہم جب بھی ایسٹر مناتے ہیں، عید قیامت المسیح مناتے ہیں، کس دن کو مناتے ہیں؟ کبھی آپ نے سنا ہو کہ یہ ہفتے کو منایا گیا، کبھی آپ نے سنا ہو کہ یہ کسی اور دن منایا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بات بائبل مقدس میں درج کر دی گئی۔ ہفتے کا پہلا دن، اور ہفتے کا جو پہلا دن ہے وہ اتوار ہے۔ ہفتے کا لفظ ہمیں پتا ہے کہ 2 طرح سے استعمال ہوتا ہے، یہ ہفتے کے ایک دن کے لیے بھی اور یہ پورے ہفتے کے لیے بھی۔ جب یہی لفظ یاد رکھے ہفتے کا، اس سے ایک مراد تو ہفتے کا دن ہے جسے ہم ایک دن کہتے ہیں، اور یہ دن جو جمعے کے بعد آتا ہے اور اتوار سے پہلے ہوتا ہے۔
कई बार इससे मतलब यह भी होता है कि जो जुम्मे के बाद दिन है या इतवार से पहले है उसे हफ्ते का दिन कहा जाता है, लेकिन यही हफ्ते का लफ्ज बाद औक़ात सातों दिनों के लिए भी, जो 7 दिन है हफ्ते के 7 दिन, ये उनके लिए भी इस्तेमाल होता। अब यहां पर लिखा गया जब हफ्ते का पहला दिन, इससे मुराद ये 7 दिन है, और इन 7 दिनों में जो सबसे पहला है, जिस दिन से हफ्ते का आगाज हो रहा है, उसकी बात की जा रही है, और ये दिन है इतवार का। यही वजह है कि जो मसीही लोग हैं पूरी दुनिया में, वो ईद क़यामतुल मसीह या ईस्टर या यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की जो ईद है, वो इतवार को मनाते। ये उसी शाम का वाकया है। पहले पैगाम मिला शागिर्दों को मरियम मगदलीनी की मार्फत के, वो मुर्दों में से जी उठा। और अगर आप इसी बाब की 18वीं आयत को पढ़ेंगे तो 18वीं आयत में एक बात लिखी है, जरा निकाले, जो हवाला पे निकाला हुआ 18वीं आयत में क्या लिखा है? मैंने खुदावंद को देखा। मरियम मगदलीनी ने आकर शागिर्दों को यह खबर दी कि मैंने किसको देखा है? मैंने खुदावंद को देखा। अब यह कोई मामूली बात नहीं है, यह कोई छोटी खबर नहीं है कि मैंने खुदावंद को देखा। अब जरा अंदाजा लगाएं और हम ये सोच सकते हैं कि वो औरत है, जब उसने आकर यह खबर शागिर्दों को दी, पतरस ने कहा होगा कि मैं भी गया हूं, यूहन्ना ने कहा होगा कि मैंने भी खबर देखी है। खबर तो खाली हमने देखी है, लेकिन खुदावंद की हमारे साथ तो कोई मुलाकात नहीं हुई। खुदावंद ने हमें तो दीदार नहीं दिया। में भी कई लोगों ने शक किया, में भी कई लोगों ने यह सोचा हो कि ये तो एक औरत है। बीबियों की गल में भी उनके ज़हन में ये बात आई, लेकिन उसने ये बताया है बड़े ईमान, यकीन और भरोसे के साथ, क्योंकि उसकी मुलाकात हुई है। उसने ये कहा कि मैंने खुदावंद को देखा है। अब बहुत से सवाल भी उन्होंने किए होंगे कि जब तुमने खुदावंद को देखा है, क्या वाकई देखा है? क्या वाकई वो खुदावंद ही था? तुमने चेहरा तो गौर से देखा है, मे भी किसी ने उस तरह का लिबास पहना हो। सुबह सुबह का टाइम था, वहां पर अंधेरा भी था, हो सकता है तेरी आंखें दुबला गई हो। मे भी तू तो एक औरत है, ये तेरा वहम हो सकता है तेरा ये वहम हो, और तू हमें ये बता रही है कि तूने खुदावंद को देखा। कुछ ऐसी यादतें बातें हुई होंगी जिसकी वजह से खुदावंद ने फिर यह फैसला कर लिया कि सुबह के वक्त तो वो मरियम मगदलीनी पर जाहिर हुआ, उसके साथ मुलाकात की। इस खबर को लेकर अब शागिर्द एक जगह पर जमा। अभी जो हवाला के हफ्ते का जो पहला दिन है वो क्या रहा है? जी भाई जरा पढ़ें आगे। उसी दिन जो हफ्ता का पहला दिन था, शाम के वक्त जब वहां के दरवाजे बंद थे। किस वजह से? जहां शागिर्द थे, यहूदियों के डर से वो दरवाजे बंद करके बैठे। यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ, बंद करके वो दरवाजे वहां पर बैठे हैं। एक डर, एक खौफ उनके ज़हनों पर सवार है। अब डर क्या है, खौफ क्या है? डर और खौफ ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम भी गिरफ्तार हो जाएं। डर और खौफ ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि यहूदी हमें भी पकड़ लें और हमें भी अदालत में ले जाएं, और कहीं ऐसा ना हो कि हम भी सजा के हकदार, हम पर यह इल्जाम लग जाए कि चूंकि ये भी उसके साथ साथ रहे हैं, ये 3 साल तक मुसलसल उसके साथ साथ रहे हैं, ये उसके साथी हैं, ये उसके शागिर्द हैं, ये उसके रसूल हैं, इनको उसने मुकर्रर किया, इनको भी गिरफ्तार करो। ये अब क्या मंसूबे बना रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? लेकिन एक डर उनके जहन में है, यहूदियों के डर से, कि यहूदियों ने हमारे उस्ताद के साथ क्या किया, वो फिर हमारे साथ क्या सलूक करेंगे। कुछ मंसूबे सोच रहे होंगे कि बचा कैसे जा सके, कैसे हम इनसे बच सकते हैं, कहीं भाग जाएं, इस शहर को छोड़ दें, इस इलाके को छोड़ दें, या क्या करें। ज़ाहिर ये सारी बातें, क्योंकि इनकी एक मजलिस हो रही है, उनकी एक इजलास हो रहा है, उनकी एक मीटिंग चल रही है। अब उसी मीटिंग के दौरान जब जो खबर पहले मरियम मगदलीनी की मार्फत उन तक पहुंची थी कि मैंने खुदावंद को देखा,
शायद उन्होंने शक का इजहार किया हो, जिस तरह मुकद्दस तोमा के बारे में लिखा गया है कि उसने एक कहा था कि जब तक मैं उसके जख्मों को देख ना लूं उस वक्त तक खुदावंद ने इनको यकीन दिलाने के लिए कि जो बात तुम तक मरियम मगदलीनी ने पहुंचाई है, उनके ज़हन में डर और खौफ है। यहूदियों के डर से वो वहां पर जमा हैं। अब जब वो वहां पर जमा हैं, मंसूबे और प्लान उनके सामने हैं, खुदावंद उनको सबूत देने के लिए कि जो बात तुम तक पहले मरियम मगदलीनी की मां तक पहुंची है, उसने तुम्हें यह खबर दी है कि मेरी खुदावंद के साथ मुलाकात हुई है। खुदावंद ने सबूत देने के लिए, खुदावंद ने उनके शकूक और शुबहात दूर करने के लिए खुदावंद उन तक पहुंचे। और अहम बात यह है कि दरवाजे भी बंद है। क्या है जी? दरवाजे, वहां के दरवाजे क्या हैं? और यीशु उनके बीच में। क्या है यीशु उनके? जरा सोचें, दरवाजे भी बंद हैं, खिड़कियां भी बंद हैं, दीवारें भी हैं, छत भी ऊपर है, कोई अंदर आने की गुंजाइश नहीं है। यीशु मसीह उनके बीच में। और यहां पर एक अहम बात है कि खुदाम के सामने कोई रुकावट देखिए, पत्थर रखकर, ईस्टर के दिन पत्थर रखकर कब्र के ऊपर उन्होंने ये सोचा था, पत्थर रखकर, पहरे बिठाकर उन्होंने ये सोचा था, रोमी मोहर करके एक पत्थर के ऊपर उन्होंने ये सोचा था कि हम इसे रोक लेंगे, और ना उस वक्त उसे रोक पाया। अब यहां पर रुकावट तो नहीं है, लेकिन उनके जहन में यह था कि चूंकि दरवाजे ने बंद किए हैं, अब हमारे पास यहां पर कोई आ नहीं सकता। लेकिन यह अहम बात यह है कि आसमान और जमीन का जो खालिक है, जिसने ये कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, उसके सामने कोई रुकावट नहीं है। वो हर वक्त, किसी भी वक्त, कहीं पर भी, चाहे वो आसमान है, जमीन है, या कोई भी जगह है, या कोई भी ऐसा मामला है, कोई बंद जगह है, खुदाम के पास ये कुदरत है कि वो हर एक जगह पर जा सकता है, हर एक जगह पर। और यहां पर ऐसा ही है, दरवाजे बंद हैं, लेकिन खुदाम ने उनके बीच में। अब उनके ज़हन में डर, जो खौफ है ना, डर, जब हम डर की बात करते हैं, डर, ये लफ्ज डर भी बड़ा काबिल गौर है। डर, कभी डरे जी जिंदगी में आप? कभी खौफ आपको आया हो या डर आपको आ गया? देखिए, ये उनके ज़हन में बात अपनी जान बचाने के हवाले से, उनके ज़हन के ऊपर यह बात सवार हो चुकी कि अब हमारा क्या बनेगा। और डर और खौफ, ये जो मुतरादिफ लफ्ज है ना, या इसके मुतल्लिक कोई और लफ्ज भी हो सकते हैं, ये बाइबल मुकद्दस में, ये अहम बात है, ये बाइबल मुकद्दस में तकरीबन 365 दफा 365 दफा इस्तेमाल हुए डर और खौफ का लफ्ज, या इससे मिलते जुलते अल्फाज। और 365 आपको पता है साल के दिन होते हैं। क्या होता है जी? साल के 365 दिन होते हैं। अब डर, ये खौफ, ये भी 365 बार बाइबल मुकद्दस में मज़कूर है। और खुदा के बंदे मुफस्सिरीन इस बात को बयान करते हैं कि ये इसलिए है कि बतौर इंसान हमें हर रोज कोई ना कोई डर या कोई ना कोई खौफ हमारी जिंदगी में आता, कोई ना कोई खदशा, कोई ना कोई खौफ, कोई ना कोई डर, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई ऐसा मामला हमारे सामने आता है। और ये डर और खौफ हमारी जिंदगी से सुकून लेकर चला जाता। कोई भी याद है कि डर अगर आपकी जिंदगी में है, आपको कभी सुकून नहीं आ सकता। कोई अगर डर आपके ज़हन में बैठ चुका है, क्यों कई बार आपको रातों को नींद नहीं आती, आप करवटें बदलते रहते हैं, लेकिन सुकून नहीं आता। इसलिए कोई ना कोई खौफ और कोई ना कोई डर आपकी जिंदगी में होता। और 365 बार मतलब हर दिन। और अगर हम इस बात को लेकर अपनी जिंदगी पर आए ना, तो ये मामला है बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत से खौफ, बहुत से डर हमारी जिंदगी में भी आ चुके हैं, हमने अपने ऊपर सवार कर रखे हैं। किसी भी बात को लेकर, किसी भी मामले को लेकर हर रोज कोई ना कोई नया मामला सर उठाता, हर रोज कोई ना कोई ऐसी बात हमारे सामने आ जाती है
कभी हमें कोई अपना मसला दरपेश है, कभी हमारे बच्चों का मसला दरपेश है, कभी कोई खानदानी मामला दरपेश है, कभी कोई कलीसियाई मामला दरपेश है, कभी कोई बीमारी का मामला दरपेश है, कभी बेरोजगारी का मामला दरपेश है, रुपए पैसे की कमी का मामला है, क्या और बहुत से मामला है। अगर आप इनको गिनना शुरू कर देंगे तो शायद आप 365 से भी ऊपर चले जाएंगे। किसी ना किसी बात को लेकर अब जब हम बड़े से बड़े की बात भी करते हैं ना, बात औक़ात हम समझते क्योंकि इंसान सुकून तलाश करता है, इंसान सुकून तलाश करता है, लेकिन सुकून उसे मिलता नहीं। इंसान मुख्तलिफ चीजों में अपने इन डर के ऊपर, अपने खौफ के ऊपर काबू पाने के लिए इंसान मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करता, मुख्तलिफ तरीके इंसान इस्तेमाल करता। रुपए पैसे के जरिए से इंसान सुकून तलाश करने की कोशिश करता है। बाज़ औक़ात आप किसी अपने अमल के जरिए से आप अपने सुकून को तलाश करने की कोशिश करते हैं। बाज़ औक़ात आप कोई नेकी करके सुकून तलाश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुकून मिलता नहीं है। अगर आप दुनिया की बात करें, दुनिया के आप किसी भी इंसान के पास चले जाएं, कोई ना कोई खदशा उसे जरूर है, कोई ना कोई डर उसे जरूर है, कोई ना कोई खौफ उसके जहन में जरूर है। अगर आप दुनिया के सबसे अमीर तरीन शख्स की भी बात करें, उसको भी कोई ना कोई डर या कोई ना कोई खौफ जरूर होगा, उसके जहन में ये बात जरूर होगी। क्योंकि इस बात को हमेशा आपने जहन में रखना है कि आप रुपए पैसे से मोटी फोम का सबसे महंगा गद्दा खरीद सकते हैं, आप शायद एक बहुत बड़ा महल बना सकते हैं, दुनिया की आसाइशें उसमें रख सकते हैं, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि महंगा तरीन घर, गारंटी नहीं है कि महंगा तरीन बेडरूम, गारंटी नहीं है उसका महंगा तरीन फर्नीचर, गारंटी नहीं है कि महंगा तरीन गद्दा, गारंटी नहीं है कि महंगे तरीन खाने और सुकून नींद भी आपको दे सके, ये गारंटी नहीं है। कोई ना कोई डर, कोई ना कोई खौफ आपके जहन में हो। तो बाद में हमें अपनी सीट के छिन जाने का खौफ होता है। सियासतदानों की बात करें, सीट का कितना खतरा होता है उनको, कहीं मुझसे मेरी सीट ना चले। लोग अपनी सीट को पाने के लिए क्या कुछ करते हैं, कितना रुपया पैसा खर्च करते हैं। एमपीए बन जाएंगे, सुकून हो जाएगा, मिलता फिर भी नहीं है। फिर जहन में आ जाती है काश मैंने बन जाता ना कभी, फिर भी कुछ नहीं, काश मुझे मिनिस्टर, अब मिनिस्टर बन जाए, काश मैं वज़ीर आज़म हो जाता, काश मैं सदर हो जाता, काश अमेरिका की सलाह मिल जाए। इंसानी याद रखे, इंसानी ख्वाहिशात की कोई हद है कि है जी कोई? ये समुद्र की गहराई की तरह है। और कहा जाता है कि आज तक जिस तरह समुद्र की गहराई को कोई नाप नहीं ना सका, इंसानी ख्वाहिशात का भी बिल्कुल यही हाल है। यही हाल है, इंसान इन्हीं ख्वाहिशात की तकमील को करता 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 कहां पहुंच जाता है, जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन ना सुकून मिलता है। कई बार याद रखें, अगर अपनी जिंदगी पर एप्लीकेशन करना इस बात की, हम भी कई बार अपने आप को बचाने के लिए, अपनी सीट को बचाने के लिए क्या क्या हरबे हम इस्तेमाल करते हैं। ज़हन में ये बात कहीं मेरी जगह पर कोई और बैठ ना जाए, कहीं मेरी जगह मुझसे छिन ना, अगर कोई और बैठ गया पता नहीं मेरा क्या बनेगा। जब अगर खुदा ने आपको बिठाना है, सुकून आपको याद रखें उस वक्त होगा जब आपको खुदा सुकून देगा। ये सीटें आपको सुकून देने वाली नहीं है, ये मर्तबे आपको सुकून देने वाले नहीं है। डर और खौफ हमारे जहनों पर सवार हो चुका और हम सुकून तलाश करते हैं अपने हरबे आजमा कर, अपने तरीके आजमा कर, अपने चक्कर चलाकर, अपने प्रोपेगेंडे करके। और ये बाइबल मुकद्दस के मुनाफी बात, उलट बात। खौफ उनकी जिंदगी में शामिल हाल है, लेकिन जब खुदावंद आ गया है, डर भी है, खौफ भी है। खुदावंद जब बीच में आ गए, और एक और बड़ी अहम बात यहां पर नोट कर ले कि कई बार ये सवाल भी किया जाता है कि जो हफ्ते का पहला दिन यानी कि इतवार है, क्यों जो मसीही लोग हैं वो उसी रोज ही इबादत करते हैं। याद रखें, यहां पर सबसे पहली बात है कि यहां पर अभी हमने जो लिखा था, इतवार हफ्ते का पहला दिन है, अभी ये यहां पर मज़कूर है। दूसरी बात यह है कि शागिर्द जमा है। शागिर्द क्या है जी? शागिर्द वहां पर जमा है, दूसरी बात है। और तीसरी बात यह है कि खुदावंद वहां पर आ गया है, खुदावंद की मौजूदगी है। खुदावंद की क्या है जी? लेकिन ये दिन कौन सा है? हफ्ते का पहला दिन। अब जब कलीसिया ने याद रखें इतवार के रोज इबादत का आगाज किया, तो यही बुनियाद है।
यही बुनियाद, और आपको ये पता है खुदा ने यीशु ने ये वादा किया था कि जहां पर भी मेरे लोग 2 या 3 इकट्ठे होंगे मैं उनके, और ये वाक़या सबसे पहला रोनमा हुआ इतवार के रोज। इससे भी अहम बात यह है कि वो मुर्दों में से जी उठा। दूसरी अहम बात यह है कि उसी दिन वो अपने शागिर्द जब वो जमा है वहां उनके दरमियान आ गया है। और इसी बात को बुनियाद बनाकर फिर शागिर्दों ने क्या किया कि चूंकि मुर्दों में से जी उठने के बाद ये फतह का दिन है हमारे लिए, खुशी का दिन है हमारे लिए, इसलिए वो इसी दिन वो जमा होते रहे, इसी दिन को उन्होंने मुकर्रर कर लिया। और ये भी अहम बात है कि नए अहदनामे में कहीं और पर आपको जिस तरह यहां पर लिखा हुआ मिलता है ना कि हफ्ते का पहला दिन, किसी और दिन के बारे में इस तरह आपको लिखा हुआ नहीं मिलता, किसी और दिन के हवाले से भी इस तरह लिखा हुआ नहीं मिलता। फिर एक और अहम बात भी है कि सबत को मनाने के हवाले से नए अहदनामे में कहीं पर भी, यूं तो बाकी के सारे अहकामात को आपको मिलेंगे कि आपने बुतप्रस्ती नहीं करनी, खुदा का नाम बेफायदा नहीं लेना, कोई मूर्त नहीं बनानी, अपने माँ बाप की इज्जत करनी है, और फिर आपने ज़िना नहीं करना, चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, लालच नहीं करना, ये सारे हुक्म आपको मज़कूर मिलते हैं। लेकिन नए अहदनामे में आपको सबत की पाबंदी का हुक्म नहीं मिलता। वजह यह है कि जब इब्तिदाई से ये शुरू हो गया तो फिर शागिर्दों ने, रसूलों ने इसी दिन को मुकर्रर कर लिया, और फिर उसी दस्तूर को लेकर आज तक जो मसीही लोग हैं वो इतवार के रोज को इबादत करते हैं। इसकी सबसे बुनियादी वजह यह है कि खुदा ने फिर ये वादा भी किया, जब ये कहा कि मैं तुम्हारे दरमियान होगा, और फिर उसने ये वादा पूरा कर दिया। सो ये बात हमें इस वाक़े में भी नजर आती। और फिर दूसरी बात, उनका डर कैसे दूर किया, खौफ कैसे, 2-3 लफ्ज हैं जो जहां पर लिखे हैं कि तुम्हारी क्या हो, क्या लिखा है, यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा, जब खौफ भी है डर भी है, उनसे कहा कि तुम्हारी 3 लफ्ज हैं, तुम्हारी सलामती हो, तुम्हारी सलामती हो, पीस बी विद यू। और ये सलाम करने का एक तरीका है जो उस जमाने में लोग करते थे, सलाम करने के, जिस तरह आज हम भी सलाम करते हैं एक दूसरे के साथ, सलाम जी करते हैं जैसा। दुनिया में लोगों का मुख्तलिफ तरीका है, अल्फाज मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन मकसद सिर्फ है सलाम का मतलब तुम्हारी सलामती हो। इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हारे लिए बरकत चाहता हूं, मैं तुम्हारे लिए एक खुदा से इत्मीनान मांगता हूं। और इसके लिए मुख्तलिफ अल्फाज आपको बाइबल में भी लिखे हुए मिलते हैं कि खुदम तुम्हारे साथ हो। बस कई बार लोग कहते हैं ना खुदम तुम्हारे साथ हो, अगर जवाब मिलता है आपके साथ भी हो। ये बिल्कुल यही चीज है, खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको भी बरकत दे। सो ये सलाम दुआ का एक तरीका है। कई बार लोग हाथ मिलाकर, कई बार लोग गले मिलकर, कई बार लोग एक दूसरे को बोसा देकर जो है वो सलाम, ये सलाम दुआ का एक अपना तरीका है। यही अल्फाज हैं, तुम्हारी सलामती हो। अब ये जो यहाँ के लफ्ज हैं, तुम्हारी सलामती हो, पीस बी विद यू, ये वो लफ्ज हैं जिन अल्फाज ने शागिर्दों की जिंदगी को यकसा तब्दील कर दिया है। और ये डर और खौफ इस तौर से उनकी जिंदगी से दूर हो गया है। पहले यही दरवाजे खिड़कियां बंद करके बैठे हैं, लेकिन जब खुदावंद के साथ मुलाकात हो गई है, खुदावंद ने कहा कि तुम्हारी सलामती हो, और इसके पीछे एक वजह है। जब आप इस लफ्ज सलामती को पढ़ेंगे ना, लफ्ज सलामती, इसके इब्रानी तर्जुमा है शालोम, यूनानी में इसे इरीने कहते हैं। और इस लफ्ज के बारे में यह कहा जाता है, मुफस्सरीन की यह राय है कि यह एक ऐसा लफ्ज है जिस लफ्ज का तर्जुमा या जिसका मफहूम उर्दू जुबान के पास नहीं है। उर्दू जुबान में वो लफ्ज ही नहीं है कि जो बयान कर सके इसके मफहूम को। शालोम लफ्ज के मफहूम को बयान करने के लिए उर्दू में या किसी और जुबान में अल्फाज ही नहीं है। इसकी इतनी वुसअत या ये इतना लफ्ज गहरा है, और ये इस तौर से आपको सलामती देता है, इस तौर से सलामती आपके अंदर आती है, अमन आपके अंदर आता है, सुलह आपके अंदर आती है, सुकून आपके अंदर आता है जो बयान से बाहर है। और कई बार हम अपने खुदा के बारे में कहते हैं कि खुदा का जो इत्मीनान है वो बयान से, खुदा का इत्मीनान बयान से, और यही है, खुदा का इत्मीनान बयान से बाहर है।
लोग भी एक दूसरे को इत्मीनान देते हैं, सलाम को आज भी लोग करते हैं, हाथ भी मिलाते हैं, मुख्तलिफ तरीकों से सलाम जी करते हैं। लेकिन याद रखें, यीशु मसीह ने इस बात को वाज़ेह किया। अगर एक हवाला आप निकाले इसी यूहन्ना की इंजील का 14वां बाब, यूहन्ना की इंजील का 14वां बाब और उसकी 27वीं आयत, बड़ी अहम बात है। यूहन्ना की इंजील 14वां बाब 27वीं आयत, मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता। ये खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हें क्या दिए जाता हूं? इत्मीनान दिए जाता हूं। आगे फर्क क्या किया जी बेटा? अपना जो बयान से बाहर है, वो इत्मीनान जो क्या है जी? जो बयान से बाहर है जी। आगे, जिस तरह दुनिया देती है उस तरह नहीं। दुनिया तो हाथ मिलाती है, लेकिन एक शेर मेरे जहन से वो पूरा निकल गया है, लेकिन जो उसका एक मिसरा है कि दोस्त नहीं होता हर हा जी, पूरा करें। तुम तकल्लुफ को भी खलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ। हम तो हाथ मिलाने के पीछे भी एक दूसरे की जड़ें काटते हैं, सलाम करने के पीछे भी एक दूसरे की जड़ें काटते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें वो सलाम नहीं देता, मैं तुम्हारा उस तरह से हाथ नहीं मिलाता, वो इत्मीनान नहीं देता जो दुनिया देती। मुखलस भी लोग हैं, लेकिन वो बहुत शादो नादर। आजकल तो एतबार नहीं एक दूसरे पर किया जा सकता। जिस पर एतबार करते हैं वही सबसे पहले आपके पांव काटता है। ये तलख हकीकत है, इस दुनिया की हकीकत जिसे आप झुठला नहीं सकते। यीशु मसीह ने कहा कि मैं वो नहीं जो दुनिया देती है, मैं अपना इत्मीनान जो बयान से बाहर है। और जब यही इत्मीनान शागिर्दों को मिला तो फिर इनकी जिंदगी में कैसी तब्दीली आ गई। सारा डर, सारा खौफ इनकी जिंदगी से भाग गया है, क्योंकि इनके अंदर सुकून आ गया है। जब आप शलोम लफ्ज का या एरेने का आप मुताला करते हैं गहराई के साथ, तो इसका मतलब है यूं तो बहुत से इसको बयान करने के लिए बहुत से मानी या बहुत सी चीजें आपको मिलेगी, वहीं पर सबसे एक जो अहम बात है वो है कि आप ज़हनी तौर पर पुरसुकून हो जाते हैं। ज़हनी तौर पर आपके अंदर सुकून और जहन, याद रखें आपका जो दिमाग है आपके बदन को कंट्रोल करता है। ऐसे है जी, जो आपका दिमाग है वो क्या करता है? आपके सारे बदन को कंट्रोल करता है। और जब उसके अंदर सुकून आ गया, फिर इसका मतलब आपका सारा बदन सुकून में आ गया। और इसका एक मफहूम यह है कि आप ज़हनी तौर पर पुरसुकून हो जाते हैं। फिर आपको किसी भी किस्म की फिक्र नहीं रहती, कोई फिक्र नहीं आप करते। वजह क्या है कि ये चीज देता कौन है? खुदा देता है, खुदा यीशु मसीह देता है, और उसने शागिर्दों को ये दिया। अब यही शागिर्द, आगे देखें, आगे लिखा है कि फिर यीशु मसीह ने अपने हाथ, अपनी पसली उनको दिखाई, अपने जख्म ने दिखाए, और इसलिए दिखाए कि ये वो जख्म हैं जिनकी बदौलत तुम्हें सुकून मिला है। तुम्हें सुकून देने के लिए मैंने खुद तकलीफ बर्दाश्त की, तुम्हें इत्मीनान देने के लिए, तुम्हें सलामती देने के लिए मैंने वो सारी चीजें, मैंने वो सारी मुसीबतें, मैंने वो सारा मुआमला, मैंने वो सारा दुख, मैंने वो सारे दर्द अपने ऊपर ले लिए। अब लिखा है, अगर आप 20वीं आयत पढ़ लें, वहां पर लिखा है कि फिर शागिर्द खुश हो गए। ऐसे ही जी, आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़े जरा इस आयत को, 20वीं आयत पढ़ दें। और ये कहकर उसने अपने हाथों और पसली को भी और पसली को भी दिखाया, जख्म दिखाए शागिर्दों को। और आगे शागिर्दों के बारे में क्या लिखा है जी? बस शागिर्द खुदाम को देखकर खुश हो गए। हालांकि जख्म देकर खुश तो नहीं ना इंसान होता। शागिर्द खुश हो गए। पहले डर है, चंद लम्हात पहले डर और खौफ जहन में है, अब खुश हो गए हैं। वजह क्या है कि दिली तौर पर इत्मीनान आ गया है। अब यही शागिर्द, जब आप इनके बाद की जिंदगी का मुताला करते हैं ना, यही शागिर्द यहूदियों के डर से अंदर बंद हैं, लेकिन इस मुलाकात के बाद जब ये बाहर निकले हैं, जब खुदाम ने इनसे कहा था कि थोड़ी देर क़याम के बाद जब मैं तुम्हें हुक्म दूंगा तो फिर तुमने निकलना है, जब ये निकले हैं फिर इनको कोई डर, कोई खौफ नहीं है। जिस पैगाम को लेकर जो इनके सुपुर्द किया गया कि जाकर सारी खलक के सामने इंजील की, फिर ये निकले हैं बाहर। फिर ना अपने माल की परवाह, ना अपनी जान की परवाह, ना अपने ओहदे की परवाह,
کسی بات کا کوئی ڈر کوئی خوف ان کی زندگی میں نہیں ہے، اس لیے کہ ذہنی طور پر خدا نے ان کو سکون دے دیا ہے، امن دے دیا ہے، سلامتی دے رہی ہے، شلام دے دیا. اور اس کے پیچھے ایک وجہ ہے. اگر خدا نے دیا ہے، یاد رکھیں یہ وہ امن اور سکون ہے. آج ہم بھی امن کی تلاش میں ہیں. آج ہم میں سے ہر کوئی بھی اور دنیا کا ہر ایک انسان آج سکون کی تلاش میں. ہر کوئی سکون چاہتا ہے، ہر کوئی سلامتی چاہتا ہے، لیکن ہے نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سکون اور اطمینان خدا دیتا ہے، کوئی اسے دل سے قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، دل سے ماننے کے لیے تیار نہیں. اور جب تک اگر آپ مانیں گے نہیں، یاد رکھیں یہ دعوت آج آپ کے لیے بھی ہے اور ساری دنیا کے لیے ہے. اگر آپ ایک اور حوالہ پڑھیں کہ متی سورہ کا انجیلی بیان نکالیں ذرا اس حوالے کو بھی. متی کی انجیل کا 11واں باب اور 11ویں باب کی 28ویں آیت. مقدس متی سورہ کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 11واں باب اور 11ویں باب کی جی پڑھیں جس نے نکالا. محنت یہ ایک دعوت ہے. محنت انسان کیوں اٹھاتا ہے؟ بوجھ انسان کیوں اٹھاتا ہے؟ سکون لینے کے لیے، سکون پانے کے لیے، تو بھی ملتا نہیں. دنیا آپ حاصل کر لیتے ہیں. آج آپ چلے گئے جو امیر ترین شخص ہے بل گیٹس کے، اب تو ایک شخص اس کے بھی آگے نکل گیا. سکون ان کے پاس بھی نہیں. اس کی وجہ ہے جب تک آپ اس دعوت کو قبول نہیں کرتے. اے تھکے ماندو اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، کہاں پر آؤ؟ سب میرے پاس، سب میرے پاس، سب میرے پاس. یہ دعوت ہے دنیا کے لوگوں کے لیے اور آپ کے لیے بھی. اگر آپ تھک گئے ہیں سکون تلاش کر کر کے، اگر آپ بھی ذہنی طور پر مطمئن نہیں ہیں، نہ آپ اپنے کسی رشتے سے مطمئن ہیں، نہ آپ اپنے کاروبار سے مطمئن ہیں، نہ اپنے گھر سے مطمئن ہیں، کوئی بھی بات آپ لے لیں، کوئی بھی معاملہ آپ لے لیں، ڈر اور خوف ہماری زندگیوں میں بھی آ چکا ہے. خدا کی دعوت یہ ہمارے لیے بھی ہے. اے تھکے ماندو اور بہت سے دبے ہوئے لوگوں، سب کہاں پر آؤ؟ میں تمہیں کیا دوں گا؟ میں تمہیں یہ وہ اتنا جس کا وعدہ اس نے شاگردوں کے ساتھ کیا کہ میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا. جس طرح دنیا دیتی ہے وہ نہیں، میں تمہیں سکون دوں گا. آئیے آج اس دعوت کو قبول کریں تاکہ شاگردوں کی طرح ہمارے ذہن میں بھی وہ سکون آ جائے، ذہنی طور پر ہم بھی مطمئن ہو جائیں. اور یاد رکھیں جب یہ چیز آپ کے ذہن کے اندر آ جائے گی، آپ کو پھر کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں رہے گی. کیونکہ پاک کلام میں ایک زبور بھی ہم گاتے ہیں نا کہ اپنا پہاڑ یہ ہواتے سٹ آپ کا ہی ہو، کہ واپس سب کچھ کرتا ہے. آپ کا خدا آپ کے لیے سب کچھ کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اسے قبول کریں. اور مقدس یونا ہی کی ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے جو اس کی معرفت خدا یسوع مسیح کے الفاظ درج ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی. جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ہمیشہ کی زندگی میری ہے، جب گارنٹی مل جائے گی. ابھی ہم نے کہا کہ میں ایمان رکھتا ہوں، عمل سے ثابت کرے کہ آپ واقعی ایمان رکھتے ہیں. پھر جو آخری نقطہ ہے گارنٹی ہے کہ وہ آپ کا ہمیشہ کی زندگی آپ کی ہے. اور یہی وہ اطمینان ہے، یہی وہ سکون ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں ایسا ہو نہ ہو، لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ جگہ میری ہے جو میرے خداوند نے میرے لیے تیار کی. وہ مکان میرا ہے، میرا نام اس کے اوپر لکھا ہوا کیونکہ میرے خداوند نے میرے ساتھ وعدہ کیا. جب آپ اس کے وعدوں کا یقین کریں گے، جب آپ سچے دل سے اس پر ایمان لے کر آئیں گے، مانتے رہیں گے، ذہنی طور پر آپ پرسکون ہو جائیں گے. ذہنی طور پر آپ کو اطمینان مل جائے گا. دنیا میں کچھ پاس ہے یا نہیں ہے، لیکن ایک گارنٹی جو میرے پاس ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے خدا باپ کا بیٹا اور اس کی بیٹی ہوں. یہ وہ سکون ہے، یہ وہ اطمینان ہے جو خداوند آپ کو دینا چاہتا ہے. اگر پہلے سے آپ اس طور سے زندگی گزار رہے ہیں، خوبصورت بات ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو یسوع مسیح کے ان الفاظ کو دل سے قبول کریں. تمہاری سلامتی ہو، پیس بی ود یو. یو کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھیں کہ خداوند آپ سے مخاطب ہے، کیونکہ وہ آپ کو سکون دینا چاہتا ہے، آپ کو آرام دینا چاہتا ہے. کہ آپ نہ صرف دنیا میں
سکون سے زندگی گزاریں، پرامن ایماندارانہ زندگی گزاریں. سب سے اہم بات آپ کو یہ سکون ہو کہ ہمیشہ کی زندگی میری ہے. ہمارا خدا اس پیغام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے. آمین. تھینک یو سو مچ.